Good morning everyone. In this video we will be discussing the graphical representation of a linear motion. Okay, we already know that linear motion is when a body moves in a particular straight line. Okay, so what is linear motion? When a body follows a straight path like this, a straight line motion, or when a body move in one direction, then it is said to be in linear motion. So here we will be studying the graphical representation of linear motion. Basically there are three graphs we are using just to represent the linear motion. One is displacement time graph. This graph is plotted between displacement and time. The other one is velocity time graph, and the very third one is acceleration time graph. In displacement time graph, see, we already know that in graph we have two axes. This is x axis and this is y axis. So in displacement time graph, displacement is along y axis and time is along x axis. In velocity time graph, same, velocity is along y axis and time is along x axis. In acceleration time graph, acceleration is along y axis and time is along x axis. Is that clear? Now let us start with displacement time graph. So what I have already explained you, there is a statement of it. In the displacement time graph, the time is taken on x axis. The time is taken on x axis and the displacement of the body is along y axis. Is that clear? Now this is a graph which is dealing with a displacement time graph, and this is very first case related to displacement time graph. This graph is all about when a body is at its stationary position. Stationary means जब body move नहीं करी है. आप body के movement को कैसे करते हो, कैसे डिटरमाइन करते हो? फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे पहले कोई बॉडी ए पोजीशन पे थी. फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉडी ए पोजीशन पे 1 घंटे पहले थी, ठीक है, 1 o'clock पे थी. एंड आफ्टर 1 o'clock लाइक 2 o'clock पे भी बॉडी ए पे ही है, 3 o'clock पे भी बॉडी ए पे ही है. सो आप क्या कहते हो? समय तो बीतता चला जा रहा है, टाइम इज़ चेंजिंग बट द बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. एंड व्हेन we know that when a body do not change its position with time, then it is said to be at rest. तो मान लिया जो बॉडी ए पे थी वो किस पे है? रेस्ट पे. Therefore this is a graph showing the displacement time graph for a stationary object. Now for a stationary object, this is displacement along y axis and this is time along x axis. Now see, when time is 0, the body is at position P. जब 0 है तो भी initially means initially starting point, जब when time is equals to 0 we consider it as initial position, starting one. Now after 1 second again the body is at position P, 2 second again it has position. So देखिए समय के साथ साथ बॉडी सिमिलरली इसी पोजीशन पे है. टाइम हैज़ चेंज टू 9 सेकेंड बट देन ऑल्सो द बॉडी इज एट इट्स सेम पोजीशन. दिस इज अ ग्राफ शोइंग द statement for the stationary object. So very first conclusion, जब भी कोई line parallel time axis के होगी ना, this is time axis and this is a line parallel to a time axis. So line parallel to time always represent the stationary object graph. Okay, so first conclusion is when a line is parallel to time axis, this graph shows the stationary object motion. Now the second case is when a body is moving with a uniform velocity, okay, with a uniform velocity. This is the second case. Now look at the example which is given here. I'll be showing you this example. Now see, when time is 0 second, so displacement भी 0 है. इनिशियली समय अभी बॉडी मूव ही नहीं करी है तो 0 सेकेंड पे 0 मीटर. ना आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का यहाँ डिफरेंस आ गया, बॉडी ने 10 मीटर कवर अप कर लिया. ना 2 सेकेंड, इन दोनों के बीच में भी 1 सेकेंड का डिफरेंस है. देखिए सारे टाइम इंटरवल के बीच में 1 सेकेंड का डिफरेंस है. और डिस्टेंस में भी क्या है, इस 1 सेकेंड के डिफरेंस में बॉडी 10 किलोमीटर गई. द अदर 1 सेकेंड डिफरेंस बॉडी अगेन कवर 10 किलोमीटर विच मेक्स इट 20. द नेक्स्ट 1 सेकेंड अगेन 10 विच मेक्स इट 30. अगेन 1 सेकेंड इट मेक्स इट 40. अगेन 1 सेकेंड दिस मेक्स इट 50. सो इक्वल टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस अलग अलग हो रही है. देयरफॉर लाइक
डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज तो सेम हो रहा है ना, 10-10 का ही सेम हो रहा है, और बॉडी इंटरवल में भी 1-1 सेकेंड का ही चेंज आ रहा है. देयरफॉर वी कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So how we are going to plot the graph? Now see, I will show you the graph. First let me explain you here. Okay, now let me plot it here. This is displacement and this is time. Okay, now time भी 0 है टाइम, तो बॉडी भी इसी पोजीशन पे है. जब 1 सेकेंड हुआ सो बॉडी क्या आ गई, यहाँ 10 पे हो गया, ये मान लिया 10 है, ये 20 है, ये 30 है, एंड दिस इज़ 40 एंड सो ऑन. दिस इज़ 1 2 3 4 5 ऐसे है. नाउ एट 0 पे बॉडी 0 है, एट 1 सेकेंड पे दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट. 1 सेकेंड पे बॉडी 10 पे गई, दिस इज़ 10, तो 1 सेकेंड पे बॉडी 10 पे गई, यहाँ पे गई. अगले 2 सेकेंड पे बॉडी 20 पे गई, ये 20 था, ये 2 था, ऐसे आ गया. 3 सेकेंड पे 30 पे गई, ये 3 सेकेंड था, ऊपर 30 था. 4 सेकेंड पे बॉडी 40 पे गई एंड सो ऑन. और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्लोप मिलेगा लाइक दिस, एंड दिस स्लोप डिटरमाइंस दी वेलोसिटी. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन में कौन सा टर्म आता है, वेलोसिटी. दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देयरफॉर ये आपको स्लोप क्या दे देगा, वेलोसिटी. See, this is the graph which I have made. Displacement, time, with equal interval, the body is changing its position. Now we had just plotted it, and this straight line gives you the velocity. This straight line gives you the velocity. Okay. One thing you need to understand, then when the body is going upward or when this velocity is positive, देखिए बॉडी ऊपर की तरफ 0 से ऊपर की तरफ जा रही है, so there the velocity will be positive or the slope will be positive. On the other hand, अगर slope ऐसे होता कहीं पे, जैसे ये है, अगर slope इस डायरेक्शन में होता, लाइक ऐसे होता slope, ऊपर से नीचे आ रहा होता, then the velocity will be negative. अगर कोई बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है, then velocity is positive, and if the body is coming back to the origin, then it is negative. Now see, here one example is given to find the velocity. What you are supposed to do to find the velocity from displacement time graph. देखिए, this is the displacement time graph. एक straight line है, that means uniform velocity है. आपको ग्राफ से velocity निकालना है. ओके, सो ग्राफ से velocity कैसे निकालते हैं, आपने ग्राफ प्लॉट किया. ओके, सो अब आप वेलोसिटी निकालने के लिए ये स्लोप निकालेंगे. फॉर एग्जांपल हम इन दोनों बॉडी के बीच में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमने बी को ए से जॉइन कर दिया. बी को ए से एक स्ट्रेट लाइन ये जॉइन कर रही है, दूसरा ये जॉइन कर रहा है. जिस पॉइंट पे जॉइन करेगा वहाँ आप कंसीडर कर लेंगे. नाउ वी नो वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सबसे पहले वाई एक्सिस ये हुआ. इन दोनों में डिफरेंस देख लें. यहाँ पे पॉइंट पे 20 है, यहाँ के पॉइंट पे 40 है. सो 40 माइनस 20 अपॉन टाइम एक्सिस ये है, इधर के टाइम पे 2 है, इधर के टाइम पे 4 है, दैट इज़ 4 माइनस 2, दैट विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जस्ट concluding all the terms, that is whether the velocity is positive or negative. Now here let me show you this. This is a displacement, this is time. When body is at 0, displacement is 0. Here it is. When body is at 2, displacement is 20. The body is at 2, the displacement is 20. Now when body is at 4, the displacement is 40. 4 पे. When body is at 6, the displacement is 60. ये हो गया. When body is at 8, displacement is 45. यहाँ डिक्रीज होने लग गया. बॉडी 8 पे है और डिस्प्लेसमेंट somehow 45 इधर है. Now when body is at 10, displacement 30. When body is at 12, displacement 15. When body is at 14, डिस्प्लेसमेंट इज़ 0. दैट इज़ बॉडी वापस ओरिजिन पे आ गई है. ठीक है, सो पहला तो ग्राफ हमको ये मिला ए बी, ये दिस इज़ ओ ए, एंड द नेक्स्ट ग्राफ वी हैज़ ए बी. तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे, इसकी वेलोसिटी को निकालेंगे. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
वेरी फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी. तो स्लोप OA क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ तक है 6 तक. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 60 इसके करस्पॉन्डिंग है और 0. सो 60 माइनस 0 अपॉन टाइम में 6 माइनस 0, दोनों के बीच का ये डिफरेंस, दोनों के बीच का ये डिफरेंस. दिस विल गिव यू 10. नाउ द अदर स्लोप इज AB. हेयर इनिशियल क्या है 60, फाइनल आप कहाँ पहुँचे हो 0 पे, तो आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल बॉडी आप कहाँ पहुँचे हो 0 पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई. इनिशियल यहाँ गिरते समय आपने स्टार्ट किससे किया था, 60 से, तो 0 माइनस 60, फाइनली आप 0 पे पहुँचे हो, तो 0 माइनस 60 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 14 है और आप कहाँ से स्टार्ट करे थे 6 से, सो दोनों के बीच का डिफरेंस. दिस विल गिव यू वेलोसिटी इन नेगेटिव. ना सी व्हेन द वेलोसिटी इज़ इन पॉजिटिव जब भी वेलोसिटी होगी बॉडी ओरिजिन से दूर जाएगी, दूर जा रही है ना 0 से. एंड व्हेन द वेलोसिटी इज़ नेगेटिव बॉडी वापस ओरिजिन की तरफ आएगी. इज दैट क्लियर? नाउ with the next case and the last case is case third, when the body is moving with a variable velocity. वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम डिफरेंस अगर इक्वल भी है तो भी जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है. पहले 1 घंटे में बॉडी ने कुछ और डिस्टेंस कवर अप किया, दूसरे 1 घंटे में बॉडी ने कुछ और, देन इट इज़ सेड टू बी अ वेरिएबल वेलोसिटी. सो देयर इज़ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएबल वेलोसिटी. एट 0 द बॉडी इज़ एट 0, फिर टाइम 2 पे हो गया तो बॉडी 10 पे चली गई एंड सो ऑन द ग्राफ इज प्लॉट. नाउ सी 2 सेकेंड का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया, इधर 3 सेकेंड का डिफरेंस हो गया, इधर अगेन 1 सेकेंड का डिफरेंस हो गया, तो टाइम भी अनइक्वल है और डिस्प्लेसमेंट भी अनइक्वल है. देयरफॉर आप क्या कहोगे, इट्स अ वेरिएबल वेलोसिटी, मीन्स सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है. सेम डिफरेंस आता है देन इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द प्लॉट. आप इस केस में जब आपको स्ट्रेट लाइन मिली थी, जब आपको ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता था तो आप ऐसे स्लोप डायरेक्ट निकाल लेते थे, लेकिन वेरिएबल में ये कर्व मिला है, वेरिएबल में यू हैव दिस कर्व, तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे, आप कर्व के किसी एक पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मान लेंगे और वहाँ से टेंजेंट, वी नो टेंजेंट क्या होता है. फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल हुई, सर्कल के एक पॉइंट से छूता हुआ ये एक्सटर्नल पॉइंट एक जाता है ना, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट वंस मोर. दिस इज सर्कल एंड बस एक पॉइंट पे छूता हुआ कोई जाए, दिस इज टेंजेंट. ओके, सो हेयर द सर्कल के ग्राफ में ये आ रहा है और एक पॉइंट से छूता हुआ दिस इज़ 1.8. सो यहाँ से छूता हुआ आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया. सो आप व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट द ग्राफ विथ वेरिएबल वेलोसिटी यू नीड टू ड्रॉ वन टेंजेंट. हेयर दिस BD is a tangent. Now you just make this, okay, and now what you are supposed to calculate is velocity. So in order to calculate the velocity you have displacement as BC and time as DC. So therefore displacement is 50 minus 10. 50 minus 10 will give you 40 upon time difference क्या है, time difference is 7 minus 3. So 50 minus 10 upon 7 minus 3 is equals to 40 upon 4, which is equals to 10 meter per second. Is that clear? This is how you were asked to calculate the velocity with the different cases. Now very first case was body stationary थी, दूसरा केस था when body uniform थी, एंड तीसरा था when body variable थी. स्टेशनरी के केस में आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिलेगा, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल ग्राफ मिलेगा. यूनिफॉर्म के केस में आपको ऐसा स्लोप मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और वेरिएबल के केस में आपको ऐसा कर्व मिलेगा. ओके, सो in our next video we will be just discussing the velocity time graph. So this was all about the displacement time graph and the calculation of velocity through these different cases of the graph. Thank you.